Morning, Good morning, sir. Sir. Sir, Good good morning, morning, sir. Sir. good morning to all of you. So once again, welcome back in social science subject, live class for standard 8. Okay. So dear students, before we proceed for the today's revision, okay, there is a small confusion. It happens that when I was typing the question and answers, okay, some of the questions repeated in chapter second and third, okay. So you can learn the answer of those questions from any one chapter. किसी भी एक चैप्टर के आप क्या लर्न कर सकते हैं, आंसर लर्न कर सकते हैं। मेरी कही गई बात आई समझ में? Yes, sir. yes, ओके Yes, sir. sir. ओके, ठीक, कोई डाउट तो नहीं Sir. इसमें? No, sir. No, sir. No, sir, no doubt. ठीक है। So that's all from my side. Would you like to ask any other question or any doubt? Is there in your mind? Pragya, Vani, Mahek, is there any doubt? No, sir. No. Yes, Tejaswini Madavi. Tejaswini, Yes, sir. do you have any doubt? Any doubt, beta? Tejaswini? Sir, I am having. Yes, ask your doubt. Yes, ask your question, ask your doubt. Yes, Dikesh Barhate, would Sir, you I am like to having ask? doubts from the chapter ruling the countryside. Okay, what is your doubt? Please Sir, there ask. is one question that why did the British want to capture Mysore ruled by Tipu Sultan? So I have not understood. Okay, why did British wanted to capture? Mysore ruled by Tipu Sultan. Okay, good. Now, the question is in textbook or where? Textbook, sir. Okay. Textbook only. Is it from ruling the countryside or second Ruling the chapter? countryside. The third chapter. Ruling the countryside. Okay. Ruling the country side, है ना? Just a minute. Yes, now this is the section, okay? Tipu Sultan, the tiger of Mysore. Now, why did the British wanted to control, है ना? So, why did the British wanted to control on the Mysore kingdom? Because the Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased पेपर एंड कार्डमम। वहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? यस वानी? परचेज करती थी पेपर और कार्डमम। पेपर एंड कार्डमम परचेज होता था, ठीक है? जस्ट अ मिनट।
Why did the British want to capture Mysore ruled by Tipu Sultan? है ना? So following were the reasons. क्या था? Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast. ठीक है? Where the company purchased pepper and cardamom. ठीक है? मैसूर जो किंगडम था, ठीक है, मैसूर किंगडम के कंट्रोल में कौन सा एरिया था? मालाबार कोस्ट का एरिया। और वहां से क्या होता था? बिजनेस होता था। किसका बिजनेस होता था? पेपर एंड कार्डमम का। ठीक है, पेपर मीन्स काली मिर्च और कार्डमम मतलब इलायची। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, So, sir. sir, only one reason is there. Yes, sir. Understood. देन अब सेकंड रीजन क्या है कि टीपू स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया? अपने किंगडम के इलाके से सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम का जो एक्सपोर्ट था वो रुकवा दिया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस एरिया से अब क्या नहीं खरीद पा रही थी? सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम खरीद नहीं पा रही थी। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। He disallowed the local merchant from trading with the company. उसने और क्या किया? जो लोकल मर्चेंट थे उन्हें ट्रेडिंग विद द कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ये तीन कारण थे जिसके कारण ब्रिटिश क्या चाहते थे? मैसूर पर कंट्रोल करना चाहते थे, मैसूर को कैप्चर करना चाहते थे कि जब तक टीपू सुल्तान रहेगा ये हमें अपने एरिया से बिजनेस करने नहीं देगा। इसलिए क्या करें? इसके राज्य को ही कैप्चर कर लें। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Clear. चलो, और कोई डाउट बेटा? Yes, sir. ये Yes, sir. देखो, if you have doubt, please ask it clearly. पूछो अभी। Sir, why were roads recurrent to यश, अनुष्का। Yes, sir. बेटा आपका क्वेश्चन मुझे प्रॉपरली सुनाई नहीं दिया, प्लीज रीड इट अगेन। अनुष्का, Yes, sir. अरे क्वेश्चन पूछो ना। Roads recurrent to Anushka, write the question in comment box. Yes, sir. Yes, Shiv Ganga, are you present? Shiv Ganga. Yes. Sir. Any other? हाँ बेटा, शिव गंगा।
Yes, sir. हाँ बेटा, स्विच ऑन योर वीडियो ऑन करो जरा, आई वांट टू सी योर फेस। ओके, सो यू आर शिव गंगा, ठीक है, ओके फाइन, यू कैन स्विच ऑफ बेटा। यस अनुष्का, why were Rayats reluctant to grow indigo? ठीक है, जस्ट अ मिनट। Is the screen visible? Yes, sir. Whisper. Okay. No, sir. No, sir. अभी क्या है? No, sir, not visible. No, sir. No, sir, not visible. No, sir. Screen is No, not sir. visible. Just a minute. बेटा अनुष्का, अनुष्का, यस अनुष्का। Yes, sir. Yes, अरे sir. बेटा, हाँ ये क्वेश्चन तुमने पूछा कहाँ से? Sir, continue. बेटा which chapter? Sir, question number, lesson number 3. हाँ लेसन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन कहाँ से, जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिया उसमें से पूछ रहे हैं या फिर चैप्टर में से पूछ रहे हैं? Sir, from chapter textbook. हाँ फ्रॉम चैप्टर टेक्स्ट बुक, है ना? चलिए ठीक है। Yes, sir. So why were the Rayats reluctant to grow indigo? ठीक है, so Rayats were reluctant to grow indigo because indigo was not a profitable business for them. indigo उनके लिए क्या नहीं था? Profitable business नहीं था. प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, अंडर द रैयती कल्टीवेशन, ओके, और अंडर द इंडिगो कल्टीवेशन they were exploited by the company officials. They were exploited by the company officials. Company officer. उन्हें कंपनी ऑफिशियल्स क्या करते थे? Exploited. एक्सप्लॉइटेड करते थे। तो इस एक्सप्लॉइटेशन के कारण वो क्या नहीं करना चाहते थे? इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करना चाहते थे। इतनी बात आई समझ में? यस सर। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है क्या बेटा? Is there any question, Vani Trivedi? No, sir, my doubt is cleared.
ठीक है बेटा, चलिए। सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सो ये वाला चैप्टर हमारा रनिंग में था, है ना? Yes, sir. ठीक। Yes, So, sir. is it chapter visible? Is the Yes, chapter sir, visible? visible. Yes, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. Visible. So, Visible, sir. Yes, sir. now, Visible. natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. ठीक है? अभी ये हमारा एक क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, है ना? I might have given it in notes also. What is biosphere? आपको क्वेश्चन शायद दिया होगा। Yes, sir. Yes, sir. What is Yes, sir. biosphere? इतनी बात आई समझ Yes, में? sir. Yes, sir. Okay. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for the survival. This life supporting system is known as the ecosystem. इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। Manvir Singh, beta, would you like to ask any question? No, sir. Beta, then switch off your audio. So in the biosphere, living beings are interrelated. जो बायोस्फीयर है ना, उस बायोस्फीयर में क्या होगा? लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड, एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड, यानी इस एक लिविंग बींग्स की लाइफ दूसरे लिविंग बींग की लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है? सो बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, रिलेशन में है, एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल, एक दूसरे पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं। तो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। इस प्रकार के लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Vegetation and wildlife are valuable resources. ठीक, तो आपको दो डेफिनेशन अच्छे से प्रॉपरली याद करना है। यहाँ तक बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. सो ये कौन सा है? बायोस्फीयर और इकोसिस्टम। ठीक, दो। चलिए, देन नेक्स्ट, अगला क्या है? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम वेजिटेशन और प्लांट्स, है ना? प्लांट और वेजिटेशन से हमें क्या क्या मिलता है? सो प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, ठीक है, प्रोटेक्ट सॉइल, so essential for growing crops. It acts as shelter bed, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, this. ठीक, तो अब ये सब बेसिकली क्या बता रहा है? इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के बहुत सारे उपयोग, है ना? इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो प्लांट लाइफ वगैरह है, ठीक है, ये प्लांट लाइफ वगैरह क्या है? इसको हमने क्या बोला? वेजिटेशन बोला। यहाँ पर क्या बोला था? Vegetation. Vegetation. अब इसके बेस पर जैसे हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन, है ना, कि
how vegetation is important for us. How vegetation is important for us. अब इसका मतलब क्या है कि हाउ प्लांट लाइफ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो वेजिटेशन या प्लांट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. ठीक, यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो क्या लिखेंगे? प्लांट्स और वेजिटेशन. प्लांट के बेस पर, प्लांट के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? वेजिटेशन भी Vegetation. लिख सकते हैं. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ तो यहाँ लिखा है कि प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, protect the soil, okay, so essential for growing crop. अब ये सब हमारा क्या हो गया कि प्लांट कैसे यूजफुल है. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ, इसी तरीके से क्वेश्चन किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए भी हो सकता है. ठीक है. So wildlife include animals. Wildlife में कौन कौन आएंगे? Animals, birds, insects, as well as the aquatic life form. ठीक, अब इनसे, इन्हें wildlife से हमें क्या मिलता है? तो wildlife provide us milk, meat, hides and wool. Then insects like bees provide us honey. Many insects help in pollination of flower and have an important role to play as decomposer in the ecosystem. The birds feed on insect and act as decomposer as well. ठीक है. So all these things could be asked in exam. इतनी बात आई समझ Okay, में? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. Yes, sir. Now नेक्स्ट सेक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का मतलब, यानी वर्ल्ड में जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे उगते हैं, वो कहां कहां पर पाए जाते हैं. Anushka Roy, would you like to ask any question, beta? No. Beta, if you do not want to ask the question, immediately switch off the mic. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because if you do not want to ask, and then if your mic is on, so whatever you do, the voice is reflecting in the class. Chaliye. So the growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. इसका मतलब vegetation यानी पेड़ पौधे. तो पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है. The major vegetation type of the world are grouped as. ठीक है. सो जो मेजर वेजिटेशन है वो कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टुंड्रा. यानी वर्ल्ड में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड करके माना जाता है. व्हाट आर दीज? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टुंड्रा. Then in areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. जो heavy rainfall के एरियाज है वहां पर क्या होंगे? बड़े बड़े पेड़ होंगे. ठीक है. सो वहां पर क्या होएगा?
फॉरेस्ट बनेगा। क्या बनेगा? Forest. ठीक है। As the amount of moisture decreases, now as the amount of moisture decreases मतलब जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता है, जैसे जैसे मॉइस्चर क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, क्या होगा? द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। वैसे वैसे ट्रीज का साइज और उनकी डेंसिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes. Then short stem trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. इसी तरीके से क्या होगा? शॉर्ट स्टंड ट्रीज। नाउ शॉर्ट स्टंड ट्रीज मतलब छोटे छोटे पेड़। शॉर्ट स्टंड ट्रीज मतलब छोटे छोटे पेड़, है ना? सो जैसे जैसे बारिश कम होगी, पेड़ों का साइज क्या होगा? कम होगा। ठीक। So, tundra vegetation of cold polar region comprises of mosses and lichens. तो जो पोलर रीजन मतलब बिल्कुल ठंडे इलाके हैं, जहां पर क्या होगी? बर्फ जमी रहती है। तो जहां बर्फ जमी रहेगी वहां पर जो वेजिटेशन होगा उसे क्या कहते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? Tundra vegetation. Tundra. Tundra vegetation. से जो डेजर्ट एरिया है वहां पर क्या आएगी? थॉर्नी श्रब्स एंड बुशेस। ठीक है, तो थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then Yes, sir. next क्या है? Conservation of natural vegetation and wildlife. अब conservation of natural vegetation and wildlife, तो इस सेक्शन में बेसिकली हमें क्या देखना है? ठीक है, तो इस सेक्शन में हम क्या देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. So Yes, sir. deforestation, soil erosion, construction activities, forest fire, tsunami and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मतलब हमारे जो पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, और वाइल्ड लाइफ मतलब जो जीव जंतु हैं, तो वो क्यों नष्ट हो रहे हैं, है ना? तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के खत्म होने के कारण क्या क्या है? व्हाट were the reasons for the extinction of natural vegetation and wildlife? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्शन के क्या क्या कारण हैं? तो कौन कौन से रीजन होंगे? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wait. Yes, Pragya sir. Bhaiya, would you like to ask any question? No, sir. No.
So one of the major concern is the poaching. Poaching मतलब शिकार करना. Poaching मतलब शिकार करना. वर्षा यादव. शिकार करना. वर्षा यादव. यस सर. बेटा अपना जरा वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करो. वर्षा यादव वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करिए. यस वर्षा यादव वीडियो ऑन करिए. सर इट इज ऑन. वॉइस नहीं आ रहा है तुम्हारा. वीडियो ऑन करो पहले. सर माय वीडियो इज ऑन. ओके बट इट इज नाउ यू हैव ऑन इट. हाँ अब ऑडियो ऑन करो जरा. यस सर. हाँ 1 मिनट रुकना. अभी जरा तुम्हारे ऑडियो लेवल को चेक करो. तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुंचती क्यों नहीं है? बोलो जरा. मोबाइल को पास में ला करके बोलो. यस सर. हाँ और पास में लाओ मोबाइल. हाथ में उठाओ ऐसा मोबाइल. यस व्हाट इज इट? वेरी गुड. सो इफ यू आर डूइंग इट ऑन लैपटॉप, म्यूजिक सुनने का हेडफोन है तुम्हारे पास? यस सर. हाँ हेडफोन लगाओ जरा. लैपटॉप में हेडफोन लगाओ. वर्षा यस सर. हेडफोन लगाइए और वीडियो ऑन करो. सर देयर इज नो हेडफोन. वीडियो ऑन करिए. हाँ बेटा व्हाट इज हैपनिंग when you are doing it on laptop, okay, and then you would like to say something, so your voice is not properly audible to me. Is it clear? Yes sir. So what you need to do, you have to use the headphone. Okay? Okay. ठीक है. Yes, Dilip, sorry, Dikesh, am I audible? Sir. Yes, sir. One of the major concern is the poaching. Poaching का मतलब क्या? शिकार. ठीक है? So why the animals are poached? Why the animals are poached? जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है? So the animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horn as well as feathers. ठीक है? So animals का शिकार क्यों किया जाता है? तो animals का शिकार किस लिए किया जाएगा? For the collection and illegal trade of hides, skin, nails, teeth, horn as well as feather. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock.
Then what the government has done, गवर्नमेंट ने क्या किया वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए. So what the government has done, national park and wildlife sanctuaries and biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए. Then conservation of creeks, lakes and wetland is necessary to save the precious resources from depletion. Okay, then there is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. तो एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहेगा यदि ये स्पीशीज क्या नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे. सो ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन था फ्रॉम दिस चैप्टर. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताओ. Yes, sir. Now, would you people have any other doubt? No, sir. No, sir. No, sir. No doubt. No, sir. No doubt. ओके, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन आंसर्स में किसी को कुछ पूछना है क्या? No, sir. In any chapter? Yes, sir. Chapter 2 from trade to territory. Is there any doubt? No, sir. No, sir. No doubt. No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, ठीक है. ओके, सो जस्ट अ मिनट. चलिए, ओके, ठीक है. So if you don't have any doubt, so we are winding up the today's session here only. Okay, friends. Okay, sir. So that's all for today live class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.